بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا دل عجیب طرح سے بوجھل سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہر سانس کے ساتھ کوئی بوجھ سینے پر بڑھتا جا رہا ہو۔ عصر کا وقت تھا، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے مشین لگا کر سارے کپڑے دھوئے اور اب چھت پر سکھانے کے لیے لے کر آئی تھی۔ کپڑے تار پر لگا کر میں وہیں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ نیلا آسمان، کھلی فضا، مگر پھر بھی گھٹن کا احساس۔ آج مجھے اپنا آپ بالکل خالی محسوس ہو رہا تھا، بالکل میری زندگی کی طرح۔ میں اپنی زندگی اور ماضی کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ لمحے جو کبھی میری امیدوں اور خوابوں کا حصہ تھے، آج بوجھ بن کر میرے دل پر حاوی ہو چکے تھے۔ کپڑوں کو تار پر لگاتے وقت میری نظر ایک چیل پر جا پڑی جو مڈیر کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھی، جیسے وہ میری ہر حرکت کا بغور جائزہ لے رہی ہو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ چیل کا یوں میری طرف دیکھنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ لیکن پھر میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ اپنے خیالات میں گم ہو گئی اور خدا سے شکوہ کرنے لگی۔ کیا ہوتا اگر میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح صحت مند ہوتی؟ کیا ہوتا اگر میری زندگی میں یہ عجیب بیماری نہ ہوتی؟ میرے دل میں یہ سوالات گونجنے لگے۔ میری ماں ہمیشہ لوگوں کے لیے فکر مند رہتی۔ وہ کبھی بھی مجھے لوگوں کے سامنے نہیں لے کر جاتی تھی۔ خاندان میں کوئی شادی ہوتی یا کتنی ہی قریبی کوئی فوتگی، میں ہمیشہ گھر پر ہی رہتی۔ میری ماں ہمیشہ سب سے یہی کہتی کہ میری بیٹی کا مزاج تھوڑا سنجیدہ ہے، اسے رش والی جگہوں سے کوفت ہوتی ہے، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں آتی۔ بچپن سے ہی اپنی دوستوں اور رشتہ داروں سے کافی کٹی تھی۔ بھائی اسکول لے جاتے، کالج لے جاتے اور پھر واپس بھی لے آتے۔ میری زندگی یہیں تک محدود تھی۔ میری ماں بھی شاید دنیا کو میری اس کمزوری سے دور رکھنا چاہتی تھی، یا وہ خود کو شرمندگی سے بچانا چاہتی تھی، مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید وہ بھی مجبور تھی۔ چھت پر بیٹھے اچانک ہی ماضی میں کھو گئی۔ مجھے اپنے بچپن کے وہ لمحات یاد آنے لگے جب میں دوسری لڑکیوں کی طرح کھیلنے، ہنسنے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کی خواہش مند ہوتی، مگر ہر بار میری بیماری نے مجھے ان خوابوں سے دور کر دیا۔ وہ لمحے جب میری دنیا اچانک اندھیرے میں ڈوب جاتی اور میں بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ میری ماں نے کبھی مجھے اس بارے میں کھل کر نہیں بتایا تھا کہ آخر میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک میں زیر علاج کیوں رہی تھی؟ وہ ہمیشہ مجھے دماغ کے بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے جاتی۔ ڈاکٹر ایک امید دلاتے اور ساتھ ہی ایک تھیلا بھر کر دوائیوں کا دیتے، لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے احساس تھا کہ کچھ تو ہے جو غلط ہے۔ میرے بچپن میں ہی میرا رشتہ میری پھپھو کے بیٹے سے طے پایا۔ پھپھو ایک نہایت امیر گھرانے میں بیاہی گئی تھی اور خاندان میں سبھی کی یہ خواہش تھی کہ ان سے رشتہ جوڑیں، لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے فواد کے لیے میرا رشتہ ابا سے مانگ لیا تھا۔ کیونکہ میں نہایت خوبصورت تھی اور خاندان میں سب سے منفرد نظر آتی، میں اس بات سے بے خبر تھی کہ یہ رشتہ میری زندگی کے لیے کتنا پیچیدہ ثابت ہونے والا تھا۔ میری پھپھو اور ان کے بیٹے کے گھر والے خوش تھے، لیکن میری ماں ہمیشہ سے اس بات سے خوفزدہ رہتی تھی کہ میری بیماری کہیں اس رشتے کو خراب نہ کر دے۔ اس خوف نے میری ماں کو خاموش رکھا۔ میں ہمیشہ ایک عجیب تنہائی میں جی رہی تھی۔ اب جبکہ میری عمر 19 سال ہو چکی تھی، وقت آ پہنچا تھا جس کا میری پھپھو کو انتظار تھا۔ انگوٹھی پہنانے کی رسم، سب خوش تھے، ہنسی خوشی کا ماحول تھا، لیکن میرے دل میں عجیب سا خوف تھا، جیسے کوئی اندھیرا میرے ارد گرد منڈلا رہا ہو۔ میری ماں نے پھپھو سے یہ کہہ دیا کہ یہ رسم ہم سادہ طریقے سے کریں گے، لیکن نکاح بہت دھوم دھام سے ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آنے والے وقت سے کیسے نمٹے گی۔ فواد ایک بڑے عہدے پر فائز تھا۔ ان کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ شہر بھر کو اس خوشی میں شریک کریں، لیکن ہماری مجبوری تھی، سو ہم نے سادگی سے رسم کرنے کا کہا۔ جب میری پھپھو کے بیٹے نے مجھے رنگ پہنانے کی کوشش کی تو اچانک میری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو سب کی نظریں مجھ پر تھی۔ میری ماں نے فوراً بہانہ بنا کر کہا کہ یہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اندر ہی اندر مجھے معلوم تھا کہ یہ سچ نہیں ہے۔ ایک عجیب سا غصہ میرے سر پر سوار ہونے لگا اور میں غرانے لگتی۔
मेरी बीमारी ने एक बार फिर मेरी खुशियों के घर को बर्बाद कर दिया। मेरी फुप्पो ने जल्दी ही शादी की ख्वाहिश भी जाहिर की, क्योंकि उनका बेटा सऊदी अरब में नौकरी करता था और सिर्फ 4 माह की छुट्टी पर आया था। ये खबर सुनते ही मेरी माँ की परेशानी दुगनी हो गई। वो जानती थी कि मेरी बीमारी की हकीकत ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। मैंने अपनी माँ की आंखों में वो खौफ देखा जो शायद मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनको ये डर था कि अगर शादी के बाद मेरा शौहर मुझे अपने साथ लेकर गया तो मैं वहाँ अकेली कैसे रहूँगी, क्योंकि उस दौरे के बाद मुझे गहरी नींद की ज़रूरत पड़ती थी, वरना मैं बिल्कुल पागलों जैसा बर्ताव करने लगती। मेरी अम्मा शादी को किसी सूरत मुलतवी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर पुप्पो ने नाराज़ होकर रिश्ता ख़त्म कर लिया तो पूरे ख़ानदान में हमारी बदनामी होती। मेरी फुप्पो का बेटा फवाद शादी के लिए ही उधर रुका हुआ था। अमीर लोगों के पास जितना पैसा होता उनकी अना भी उतनी बड़ी होती। अगर उनकी बात कोई ना माने तो इस बात पर जिद पकड़ लेते हैं। मेरी फुप्पो जितनी खुश थी उस रिश्ते के लिए, हमारी शादी के लिए वक्त मांगने पर उनको ज़रूर शक हो जाता कि आखिर ऐसी भी क्या बात थी जो हम लोग टाल रहे थे। आमतौर पर लोग इतना अच्छा रिश्ता मिलने पर खुशी से फूले नहीं समाते। वो तो इसी जल्दी में होते कि बस चट मंगनी पर ब्याह हो जाए ताकि अच्छा रिश्ता हाथ से ना चला जाए। मगर मेरी अम्मा तो जब से रिश्ता हुआ उनकी रातों की नींदें हराम हो गई थी। मैंने उनको अक्सर अपने सिरहाने बैठे देखा। वो ज़रूर कुछ न कुछ पढ़कर मेरे ऊपर फूंक रही होती थी। जब भी मेरे ऊपर वो दौरा आता तो वो मुझे अकेले कमरे में लिटा देती। मेरी दुनिया घंटों तक अंधेर हो जाती और जब मैं अपनी आंखें कुछ घंटों बाद खोलती तो मेरी अम्मा मेरे करीब ही होती। मैं हर मर्तबा रोकर अम्मा से पूछती कि आप मुझे बता क्यों नहीं देती कि मेरे साथ क्या मसला है। अब मैं मज़ीद ऐसे जी नहीं सकती। अब तो मेरी शादी भी करीब है। अगर कभी यही हालत मेरे शौहर के सामने आ गई तो मैं क्या जवाब दूंगी? मेरे पास तो कोई जवाब होना चाहिए अपनी इस हालत का। लोगों को अगर कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी होती है तो उसके बारे में भी उनको पता होता है कि हमें ये मर्ज है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरे साथ कौन सी बीमारी जोंक की तरह चिमट गई थी। मैं अपने ख्यालात में इस कदर गुम थी कि एकदम मुझे अपने पास सरसराहट महसूस हुई। मैं एकदम से होश में आई। देखा तो वो चील मेरे पास चारपाई पर बैठी हुई थी और मेरी आंखों में ही यकटक देख रही थी। उस वक्त मैंने गौर किया तो उसकी आंखों का रंग सुर्ख अंगारा था। मुझे देखते ही उसने ज़रा भी आंखें नहीं झपकी। मैं एकदम से डर के मारे उस चारपाई से उठी, क्योंकि वो चील मेरे से चिपक कर बैठी थी। मैं माजी के ख्यालों में इस कदर डूब गई कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो मेरे इतने करीब आ गई थी। एकदम से उठने की वजह से मेरा सर चकराने लगा। मुझे आजकल वैसे भी बहुत कमज़ोरी थी, ऊपर से झटका खाकर उठने से ऐसे लगा कि जैसे पूरी दुनिया मेरे आगे घूम गई हो। छत पर कोई और था भी नहीं, वरना मैं उसी को आवाज़ दे देती। अब मैं वापस नीचे जाने लगी, क्योंकि मुझे उस चील से डर लग रहा था, मगर तार से कपड़े उतारना चाहती थी क्योंकि मौसम एकदम से तूफानी हो गया था। आसमान पर काले स्याह बादल छाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में तेज बरसात शुरू हो जाएगी। मैंने चकराते सर के साथ ही सारे कपड़े उतारे और नीचे जाने लगी ही थी कि सीढ़ियों पर से अचानक मेरी नज़रों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे पूरी दुनिया घूम गई हो। एकदम से मेरा पैर सीढ़ियों से फिसला और मैं औंधे मुंह सीढ़ियों पर गिरने लगी कि किसी का मजबूत हिसार मेरे इर्द गिर्द आ गया। मुझे अपने अतराफ में किसी की चिट्टानी गिरफ्त महसूस हुई, जिसने बर वक्त मुझे मुंह के बल गिरने से बचा लिया। मेरे दिल की धड़कन खौफ के मारे एकदम बहुत तेज हो गई, क्योंकि अभी मुझे लग रहा था कि इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मेरा सर फट जाता। मगर शुक्र था कि उस अनजान शख्स का, जिसको मेरे अल्लाह ने फरिश्ता बनाकर भेजा था और मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचाया। मैं एकदम से उसको मुड़कर देखना चाहती थी, मगर कुछ ही लम्हों में मेरे ऊपर जैसे किसी ने कोई जादुई मंत्र फेंका हो और मैं होश आवाज़ खोती चली गई। मैं उस अनजान मेहरबान की बाहों में झूल गई। उसके बाद मुझे कुछ खबर नहीं हुई कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो एकदम से खुद को कमरे में देखकर मैं झटके से उठी। मैंने कमरा खाली देखा तो हैरत हुई कि अम्मा किधर थी। जब भी मैं उस बीमारी की वजह से बेहोश होती तो होश आने पर अम्मा को अपने पास ही बैठा देखती। मुझे तो इस बात से भी परेशानी हो रही थी कि मैं यहाँ कमरे में कैसे आई। मुझे अच्छे से याद था कि मैं तो सीढ़ियों से कपड़े उतार कर ला रही थी और एकदम से मुझे चक्कर आ गए थे।
मगर मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि मुझे कमरे में कौन लाया, किसने मेरी जान बचाई। मुझे अब भी अपने वजूद के गिर्द वो अनजान लम्स महसूस हो रहा था। मैं उठी और बाहर निकलकर अम्मा से पूछा कि मुझे कौन कमरे में लाया है। मैं तो छत पर कपड़े सुखाने गई थी। अम्मा मुझे कहने लगी कि तू बावली हो गई है क्या? तू तो खुद ही अपने कमरे में चल कर गई थी, अब ये बात कर रही है। मैं फटी आंखों से अम्मा की बात सुनती गई। मैंने उनसे मज़ीद कुछ भी बात नहीं की, क्योंकि अगर मैं उनको ये बात बताती तो वो मेरे लिए मज़ीद परेशान हो जाती। पहले ही उनको मेरी वजह से एक पल का सुकून नहीं था। उनकी तो मेरी परेशानियों ने वक्त से पहले ही उन्हें बूढ़ा कर डाला था। अब अगर ये बात पता चलती कि मुझे बचाने वाला कोई पुरस्कार शख्स था जो अचानक गायब हो गया, तो वो मज़ीद सदमा ले लेती। मैं जल्दी से कोई बहाना करके अपने कमरे में आने लगी कि सामने है। मेरा नाम उमामा है। मैं एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे, जहाँ उनको गुजारे लायक तनख्वाह मिलती थी। हमारा गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। मेरे से बड़े मेरे 2 भाई हैं। उनकी और मेरी उम्रों में काफ़ी फ़र्क था। पहले की 2 औलादें बेटा हुई थी। इसी वजह से अम्मा अब्बा यही चाहते थे कि उनके यहाँ बेटी पैदा हो। उनको हमेशा से बेटी की ख्वाहिश रही। मगर जब अल्लाह ने 2 बेटों के बाद काफ़ी अरसा उनको औलाद नहीं दी, तो अम्मा बहुत दुखी रहने लगी। वो हर नमाज में अल्लाह से रो कर दुआएं करती कि उनके घर एक फूल जैसी बेटी पैदा हो जाए। अब्बा भी चाहते थे कि उनकी एक बेटी हो जाए, मगर वो यही कहते थे कि ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। इंसान तो बस उसके हुक्म का गुलाम होता वही है जो हमारा रब चाहता है। वो अम्मा को भी यही समझाते कि तुम अपनी दुआओं पर यकीन रखो और सब्र से काम लो। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो ज़रूर हमारी मुराद पूरी करेगा। वही तो सबकी फरियाद सुनने वाला है। उसी के हुक्म से सब कुछ होता है। अगर वो ना चाहे तो एक पत्ता भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता। अब्बा के इतने समझाने के बावजूद अम्मा रातों को उठकर तहज्जुद में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर बेटी की दरख्वास्त करती। उन्होंने ख्वाहिश से अपनी ज़िद बना ली थी। इसीलिए हमारे रब ने फरमाया है कि इंसान को किसी भी चीज़ के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ना चाहिए। जब भी ऊपर वाले का हुक्म होगा, हमारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। जब मज़ीद 2 साल ऐसे ही सब्र करते गुजर गए, तो एक दिन वो मोहल्ले की किसी औरत के बताए गए एक पीर के पास गई, जो मुख्तलिफ तावीज़ बना कर देता था। उसका आस्थाना एक बहुत ही खुफिया जगह पर था, जो कि आबादी से हटकर वीरान इलाके में था। अम्मा उसके पास गई कि बाबा जी, मुझे कोई ऐसा सबक बता दें जिससे मेरे घर बेटी पैदा हो जाए। मैं किसी भी हाल में एक बेटी चाहती हूँ। अम्मा मुझे एक किस्सा सुना चुकी थी कि कैसे वो मेरी पैदाइश से पहले उस पीर के पास छुप कर जाया करती थी। वो उस तावीज़ के बदले अम्मा से हज़ारों रुपए लिया करता, मगर अम्मा के सर पर तो बस जुनून सवार था। मोहल्ले की औरत ने कहा था कि ये बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, मगर तुम इसका जिक्र अपने शोहर से मत करना। मैंने ऐसा ही किया। फिर कुछ ही अरसे बाद मुझे इतने सालों बाद खुशखबरी मिली, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं था। अब्बा भी तो बहुत पुरजोश थे, क्योंकि उनकी भी जैसे ख्वाहिश पूरी होने लगी थी। मगर किसी को नहीं पता था कि मेरे पैदा होने के कुछ ही अरसे बाद हमारे घर पर क़यामत टूट पड़ेगी। मैं अभी 2 साल की थी कि अब्बा एक दिन घर आते वक्त गाड़ी से टकराकर फोत हो गए। उनकी मौत से हमारे पूरे घर में कोहराम मच गया। हर कोई आंसू बहा रहा था। मेरे बड़े दोनों भाई उस वक्त 15 और 18 साल के थे। वो उस वक्त जवान थे, इसीलिए उन्होंने खुद को किसी हद तक संभाल लिया। मगर मैंने तो अभी तक अब्बा का प्यार ठीक से महसूस भी नहीं किया था कि मेरे सर पर यतीम होने का ठप्पा लग गया था। हर कोई आकर हमसे हमदर्दी करके चला जाता। अम्मा तो अब्बा के जाने के बाद ही गुमसुम रहने लगी थी। अब वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस मुझे अपने पास गोद में बिठाकर घंटों एक जगह देखती रहती। सबसे ज़्यादा सदमा उन्होंने लिया था। वो जब भी कभी परेशान होती तो अपने आप के साथ यही कहने लगती कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर वक्त गुजरता गया और अम्मा के सर पर एक बहुत ही मुश्किल जिम्मेदारी आ गई। वो जिस बेटी के लिए दिन रात दुआएं करती थी, अल्लाह ने उनकी सुन ली थी। मगर मेरे साथ जो हर वक्त की ये पुरस्कार बीमारी चिमटी हुई थी, इससे उनके चैन सुकून सब कुछ बर्बाद हो चुका था।
انہوں نے کسی کو بھی پتہ نہیں لگنے دیا تھا کہ مجھے اکثر اوقات دورے پڑتے جاتے ہیں۔ اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا جاتا، جس کی وجہ سے میں اپنے ہوش کھو دیتی۔ پھر کئی گھنٹوں بعد میری آنکھ کھلتی۔ نہ جانے یہ سب کیا تھا۔ میں تھی بھی قدرتی طور پر ایک بہت ہی کمزور سی لڑکی۔ مجھے بے تحاشا حسن ملا ہوا تھا۔ میرے جیسا حسین آج تک پورے خاندان میں کوئی نہیں تھا۔ میری گوری ملائی جیسی رنگت دیکھ کر ہر کوئی دیکھتا ہی رہ جاتا۔ لوگ اماں سے پوچھتے کہ تو نے کیا کھا کر ماما کو پیدا کیا ہے جو یہ اس قدر خوبصورت ہے۔ اماں لوگوں کی باتوں پر خاموش ہو جاتی۔ میں سب سے منفرد تھی، اسی وجہ سے مجھے سب کی بہت توجہ ملی۔ میرے بھائی بھی میرا کافی خیال رکھتے۔ مجھے کہیں بھی جانا ہوتا، پھر چاہے وہ اسکول ہوتا یا کالج، وہ بازار ہو، میرے سائے کی طرح میرے ساتھ ہوتے۔ مگر اماں کی کوشش بھی ہوتی تھی کہ کسی بھیڑ والی جگہ پر مجھے لے کر نہ جائیں۔ میری طبیعت ایسی جگہوں سے اچانک ہی خراب ہونے لگتی تھی۔ خاندان میں اگر کوئی شادی وغیرہ ہوتی تو میرا بڑا دل کرتا کہ باقی لڑکیوں کی طرح سج سنور کر جاؤں، سب سے ملو جلوں، مگر اماں یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ میری بچی تو جب بھی ایسی تقاریب میں جاتی ہے تجھے لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ میری شہزادی بالکل چاند کا ٹکڑا ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ اس کو کوئی نظر لگائے۔ اماں مجھے پیار سے منع کر دیتی، جس کی وجہ سے میں بھی مان لیتی، مگر در حقیقت میرا دل خون کے آنسو روتا جب خود کو بے بس گھر کی چار دیواری میں بند دیکھتی۔ میں اماں سے کہتی تھی کہ میں کب عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزار سکوں گی، جہاں پر کوئی روک ٹوک نہ ہو، نہ ہی میں ہر دوسرے دن بیمار پڑ جایا کروں۔ مجھے اماں نے سختی سے کہا ہوا تھا کہ میں اپنی اس حالت کا ذکر خاندان میں کسی سے نہ کروں۔ مجھے عجیب لگتا کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کو بتاتے تھے، مگر اماں نے تو اس بات کو خفیہ راز کی مانند چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اماں مجھے کتنے ہی ڈاکٹروں کے پاس بھی لے کر جا چکی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور ایک دن ایسا بھی آیا جب میری شادی کی عمر ہونے لگی۔ میرا رشتہ تو ویسے بھی میری پھپھو کے بیٹے فواد سے طے تھا، تو اماں کو رشتہ ڈھونڈنے کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑا۔ اتنا اچھا امیر گھرانے کا لڑکا مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ مجھے تو ہواؤں میں اڑنا چاہیے، مگر میرے چہرے پر ایسی کوئی خوشی بھی ڈھونڈنے سے بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ میری شادی نہیں ہو رہی، کسی اور کی شادی ہو رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میری یہ پراسرار بیماری تھی۔ مجھے اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے کھل کر خوش ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ آج تک اسی بیماری کی وجہ سے اماں مجھے شادی کی کسی تقریب میں لے کر نہیں گئی تھی، کیونکہ بھیڑ والی جگہوں پر میرے اوپر دورہ آ جاتا۔ اب جب میری شادی ہو گئی تو اتنے سارے مہمان ہوں گے۔ میں اماں کی پریشانی دیکھ کر اماں سے کہتی کہ اماں بس اب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ سب بہتر کرے گا۔ ہمارے ایسے پریشان رہنے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اوپر سے جو خوشی کا موقع ہے اس میں بھی ہم اچھے سے شریک نہیں ہو سکیں گے۔ اماں نے بھی اب سب کچھ رب کے حوالے کر ڈالا تھا۔ یوں جب ایک دن انگوٹھی پہنانے کی رسم ہوئی تو اسے ایک رات پہلے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی جس کو میں کوئی نام نہیں دے سکتی تھی۔ اماں مجھے ایسے بے چین دیکھ کر ڈاکٹر کے پاس لے گئی، کیونکہ ان کو بھی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کل اتنے سارے مہمانوں کے بیچ میری طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ میری سسرال والوں کو بھنک بھی پڑ گئی تو میرا رشتہ ٹوٹ جانا تھا۔ ڈاکٹر نے تو اماں کو کہا تھا کہ ہم نے آپ کی بچی کا معائنہ کیا ہے، یہ جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہے۔ ہم پھر گھر آ گئے، مگر مجھے کسی صورت آرام نہیں آ رہا تھا۔ میں اٹھی اور اوپر چھت پر آ گئی۔ چھت پر تیز ہوائیں چل رہی تھی، جس سے میرا موڈ ایک دم بہتر ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر میں میری ساری بے چینی ایسے غائب ہوئی جیسے تھی ہی نہیں کبھی۔ میں آنکھیں بند کر کے منڈیر کے پاس کھڑی تھی۔ تیز ہوا کی وجہ سے میرا دوپٹہ سر سے سرک گیا اور میرے لمبے گھنے بال ہوا سے لہرانے لگے، مگر میں اس قدر محویت سے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی کہ مجھے کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ مجھے اتنی بھی سمجھ نہیں پڑی کہ رات کے وقت میں ننگے سر چھت پر کھڑی تھی اور میرے بال لہرا رہے تھے۔ ایک نوجوان لڑکی کا ایسے آدھی رات کو چھت پر اکیلے آنا ہی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ میں تو پھر ننگے سر کھڑی تھی۔ میری اماں مجھے ہمیشہ منع کرتی تھی
ऐसे अकेले रात को ऊपर जाने से मगर मुझे किसी करवट आराम नहीं आ रहा था। कमरे में तो जैसे मेरा दम घुटने लगा था। अम्मा मुझे कहती थी कि रात के वक्त ऐसे छत पर जाना इसलिए मना है क्योंकि रात को हर तरफ सन्नाटा होता है और ऐसे वक्त में सारी पुरस्रार मखलूक भटक रही होती है। उन पुरस्रार ताकतों और इंसानों के बीच अल्लाह ने एक पर्दा बना रखा है जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं देख सकते, मगर उनके पास ये ताकत होती है कि वो हमें देख सकें। अगर उनमें से किसी साए की नज़र भी इंसान पर आ जाए तो वो फिर उसके साथ चिमट जाता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे जिन्नात वगैरह फिर लड़की पर आशिक हो जाते हैं और उसकी ज़िंदगी को एक बयाना ख्वाब बना कर रख देते हैं। मैं उस वक्त सब कुछ भूल चुकी थी, मगर कुछ ही देर बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मुझे अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपश महसूस हुई। मैंने एकदम आंखें खोलकर देखा तो सामने ही एक चील बैठी हुई थी। वो मुझे ही घूर रही थी। मैंने पहले तो उसको नज़रअंदाज करना चाहा, मगर वो मुसलसल मेरे बालों की तरफ ही देखे जा रही थी। मैंने आज तक ऐसी कोई चील नहीं देखी थी जो कि ऐसे घूरे। मैंने फुर्ती से सर पर दुपट्टा लिया और नीचे आ गई। जल्दी से खुद पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी क्योंकि मुझे अजीब लग रहा था बहुत। बार बार नज़रों के सामने वही चील घूम रही थी। फिर वही सोचते हुए मेरी आंख लग गई। अगले दिन मंगनी की रस्म अदा होने लगी तो मेरे साथ वही हुआ जिसका डर था। मेरी नज़रों के सामने अचानक से दुनिया घूम गई और अंधेरा छाते ही मैं बेहोश हो गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। मेरी मंगनी की रस्म मेरे बेहोश होने की वजह से अधूरी रह गई। मेरी अम्मा मुझे जल्दी से कमरे में लेकर आई और सबसे यही बोला कि मेरी बच्ची बेचारी शादी की वजह से डर रही है, अपनी माँ को छोड़ने की वजह से बहुत उदास है, इसीलिए परेशानी की वजह से बेहोश हो गई है। सबने उनकी बात मान ली थी क्योंकि शादी से पहले अक्सर लड़कियां घबराहट का शिकार होती हैं। इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं थी। अम्मा ने मंगनी की रस्म में तो किसी न किसी तरह बात संभाल ली, मगर जब पप्पो ने जल्द शादी की डिमांड रखी तो उनके हाथ पांव फूलने लगे। वो इनकार तो किसी सूरत नहीं कर सकती थी क्योंकि फिर उन लोगों को शक पड़ सकता था। मेरी तो अब उम्र हो गई थी। फवाद तो इस मर्तबा शादी के लिए ही खास रुका हुआ था। वो शादी के बाद मुझे अपने साथ लेकर जाने वाला था। पप्पो ने तो सारी तैयारियां कर ली थी। अम्मा फिर आखिरकार मान ही गई थी। उसी महीने की आखिरी तारीख को मेरी बारात थी। मैं शादी की किसी तैयारी में हिस्सा नहीं ले रही थी क्योंकि अम्मा ने खुद मुझे मुकम्मल आराम करने का कहा था। वो सब काम खुद ही कर रही थी। भाई कहते थे कि इससे भी काम करवाएं, आपने तो हमें नौकर बनाकर रख दिया है। मगर अम्मा का यही कहना था कि मेरी बेटी कुछ दिन की मेहमान है, अब वो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाएगी। मेरे भाई इस बात पर बुरा मनाते क्योंकि अम्मा ने हमेशा ही उन दोनों से ज़्यादा मुझे अहमियत दी थी। वो मेरा ख्याल बिल्कुल किसी कांच की गुड़िया की तरह रखती थी। हर वक्त साए की तरह मेरे साथ रहती। अगर ज़रा भी मुझे चोट आ जाती तो वो तड़प जाया करती। पूरी रात वो मेरे सिरहाने बैठकर जागते में गुजार देती। ऐसा नहीं था कि वो मेरे दोनों भाइयों से प्यार नहीं करती थी, वो उनसे भी बहुत मोहब्बत करती थी, मगर मैं चूँकि बचपन से ही कमज़ोर थी और ऊपर से मन्नतों मुरादों के बाद हुई थी और उनको हर वक्त एक धड़का लगा रहता कि कहीं मुझे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। मेरे भाई अक्सर ही वक्त गुजारने के साथ मुझे ताना देने लगे थे कि तुमने हमारी अम्मा को हमसे छीन लिया, वो हमसे अब ज़रा प्यार नहीं करती, हर वक्त तुम्हारे ही आगे पीछे घूमती रहती हैं। मुझे अपने भाइयों की बात सुनकर बहुत दुख होता क्योंकि ऐसा नहीं था। मैं खुद से तो बीमार नहीं होती थी ना ही जानबूझकर बेहोश होने की अदाकारी करती। मैं तो अब खुद आजिज़ आ चुकी थी कि कब मैं भी एक मामूली इंसान जैसी ज़िंदगी गुजारूंगी। कौन ऐसी ज़िंदगी जीना चाहेगा जहाँ पर उसको बज़ाहिर तो कोई बीमारी नहीं होती, मगर कुछ तो गैर मामूली था जो कि आम इंसान की समझ में नहीं आ सकता था। फिर मैं एक दिन सोकर उठी तो बाहर अम्मा किसी पड़ोस वाली औरत के साथ बात कर रही थी। मैं उनके लिए शरबत लेकर जाने लगी कि बाहर ही उनकी बातें सुनकर ठटक गई। अम्मा उस पड़ोस वाली औरत से कह रही थी कि बहन, मैं अपनी बच्ची की वजह से बहुत परेशान हूँ। अब इस महीने उसकी शादी है, कोई भी मसला मैं नहीं चाहती। वो औरत कहने लगी कि तुम मेरी मानो तो उसी पीर के पास ले जाओ, वो ऐसा अमल करेगा कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी
और अपने घर में सुखी रहेगी। मेरी अम्मा ये सुनकर गुस्से से लाल पीली हो गई। मैं कभी उस जादूगर के पास अपनी फूल जैसी बच्ची को लेकर नहीं जाऊंगी। उसकी वजह से मैं आज बेवा हो गई हूँ। मेरा शोहर उस खटिया पीर के जादू की भीड़ चढ़ गया। फिर मेरी बच्ची जब से पैदा हुई है वो बीमार है, उसको वो पुरस्कार बीमारी चिमटी हुई है। मैं इस सब की कसूरवार हूँ, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। खुदा गारत करे उसको, वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा। पैसे की लालच में उसने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। मेरी अम्मा ये सब कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। मैं ये सब दिल दहलाते इंकशाफ सुनकर लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसका मतलब अब्बा की मौत कोई हादसाती तौर पर नहीं हुई थी, बल्कि किसी पीर के जादुई अमल की वजह से हुई थी। और तो और मेरी बीमारी भी इसी अमल की वजह से थी। मैं अम्मा को उस औरत के साथ मसरूफ़ देखकर जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब क्या बनेगा। अब मुझे समझ आया था कि अम्मा का डर किस वजह से था, और वो उसी जादू की वजह से सख्त खौफज़दा थी। उस जादू का असर अब तक हमारी ज़िंदगियों में मौजूद था। मैं उसके बाद हर नमाज में अपने रब से दुआ करने लगी कि मेरी सारी परेशानियां दूर कर दे। मैं जानती थी कि जादू एक कबीरा गुनाह है। उसको करने वाला अपने रब के अहकामात से हटकर कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, और ये सब वो जादुई मंत्रों की मदद से करता है। अम्मा खुद को अब्बा का कातिल समझती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो उस पीर के पास ना गई होती तो आज ऐसा नहीं हुआ होता जो कि हमारे साथ हो रहा था। अब्बा हमारे बीच मौजूद होते। औलाद का होना तो वाकई अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, मगर अम्मा ने अपने जुनून में कुछ भी नहीं सोचा था। मगर इस सब में अम्मा की गलती नहीं थी। वो तो नहीं जानती थी कि वो कोई आमिल नहीं बल्कि एक जादूगर है। वो तो यही सोच कर गई थी कि वो कुरानी आयत से उनकी मदद करेगा, मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। फिर शादी के दिन करीब आने लगे तो घर में सबका ध्यान कामों की तरफ लग गया। अम्मा भी मसरूफ़ थी, इसलिए मैं उनको बता नहीं सकी कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं उनको बताना चाहती थी कि वो खुद को अब्बा का कातिल न समझे। ये सब तो किस्मत में पहले ही लिखा जा चुका था। हर इंसान अपने अमल का जवाबदेह खुद होता है। वो पीर एक न एक दिन ज़रूर अपने अमल का हिसाब देगा। अम्मा ने अपनी पूरी उम्र इसी पछतावे में गुजार दी थी कि अगर किसी को भिनक भी लग गई कि आज मैं जिस हाल में हूँ उसकी वजह वो है। मेरा दिल दुखता था उनको ऐसे देखकर, मगर मुझे वक्त ही नहीं मिला उनसे बात करने का। फिर इसी तरह से शादी का दिन आ गया और मैं फवाद के साथ सऊदी अरब चली गई। पुप्पो भी हमारे साथ ही गई थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, मगर फिर एक हफ्ते बाद ही जब भी मेरा शोहर कमरे में आता मैं कुछ ही देर बाद बेहोश हो जाती। पहल तो उसने ये बात इग्नोर की, क्योंकि मैंने कहा था कि जगह और माहौल बदलने की वजह से मुझे घबराहट होती है और इसी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। मगर जब ये सब रोज़ का मामूल बन गया तो फवाद ने पुप्पो को बताया इस बारे में। वो मुझे वहाँ की सबसे अच्छी डॉक्टर के पास ले गई ताकि मैं ठीक हो सकूं। मगर डॉक्टर ने साफ कह दिया कि कोई मसला नहीं है। ये सब 2 महीनों तक चलता रहा तो मेरे शोहर का सब्र जवाब दे गया। एक दिन मैं नीचे अपनी सास को चाय देने जा रही थी कि अंदर से मुझे अपने शोहर की आवाज़ सुनाई दी। वो पुप्पो से कह रहा था कि अम्मा, ये आपने किस लड़की से मेरी शादी करवा दी है? मैंने शादी के बाद अब तक एक दिन भी सुख का नहीं देखा। वो लड़की तो मुझे देखकर खुद पर बेहोशी तारी कर लेती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कोई एक गैर शादीशुदा इंसान हूँ। मैंने अब तक शादीशुदा ज़िंदगी का कोई सुख महसूस नहीं किया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा गुजारा मामा के साथ मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस बेनाम रिश्ते को मज़ीद आगे लेकर चल सकूँगा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे फवाद की बात सुनकर सख्त रौन आया। अगर वाकई में उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मेरी अम्मा ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर सकेंगी? उसके बाद मेरा शोहर मुझसे खिंचा खिंचा सा रहने लगता था। वो बराए नाम ही मुझसे बात करता। मैं कितनी ही कोशिश कर लेती उसकी गलत फहमी दूर करने की, मगर वो भी एक मर्द ही था। उसकी भी कुछ अपनी ज़रूरियात थी, इसलिए उसको लगता था कि ये मेरे किसी भी काम की नहीं। मैं घर के काम काज करने में भी बहुत जल्दी थक जाती। ज़रा सा काम करके मेरे पूरे जिस्म में दर्द होने लगता।
मेरे ऊपर नींद का गलबा तारी हो जाता। मेरी पुप्पो ये सब देखकर मुझे ताने देने लग गई थी कि हमारी मत मारी गई थी, जो तेरी खूबसूरती देखकर हर बात फरामोश कर बैठते। इतना तो हमें पता ही था कि तेरी अम्मा तुझे किसी भी जगह अपने साथ ज्यादा लेकर नहीं जाती थी, मगर इसकी वजह ये होगी, अगर हमें पहले ही पता होता तो कभी तेरे जैसी मरीजा को ब्याह करने लाते। हमारी तो किस्मत फूट गई जो अच्छी से अच्छी लड़की को ठुकरा कर तुझे पसंद कर लिया। मेरा लाडला बेटा अब तक एक दिन भी सुख का नहीं देख सका। मैं खामोशी से अपनी सास की बातें सुन रही थी, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं था। अगर अम्मा उनको पहले ही मेरी हकीकत का बता देती तो ना उन लोगों के ताने सुनने पड़ते और ना ही इतनी अजियत झेलनी पड़ती। एक दिन तो वैसे भी ये राज सबके सामने खुलना ही था। एक रोज इतवार का दिन था। मेरी सास उस दिन कमरे में लेटी आराम कर रही थी, जबकि फवाद बाहर ही बैठा टीवी देख रहा था। मैं अपनी सास के कमरे में सफाई के लिए गई, मगर एकदम मुझे चक्कर आने लगे और नजरों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ ही देर बाद मैं धड़ाम से नीचे गिर गई। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो एकदम से सास की तंज भरी आवाज सुनाई दी, देख फवाद, इसको होश आ गया है। अब पूछ जरा इससे कि हमारे घर किस मकसद से आई है। मैं तो इसको इसलिए अपने घर की बहू बनाकर लाई थी कि मेरे भाई की लाडली बेटी है, उसकी आखिरी निशानी है। मुझे तो यही लगा था कि ये एक शरीफ और नेक लड़की होगी जो ससुराल और शोहर को एक साथ लेकर चलेगी और हम सब खुशी खुशी रहेंगे। मगर मुझे क्या पता था कि अपने हाथों से एक डायन को ब्याह कर लाई हूँ। ये लड़की तो ना ही शोहर को कोई हक देने के काबिल है और ना ही घरदारी जानती है। मैं हैरान थी कि एकदम से क्या हो गया है। मैं तो फुप्पो के कमरे में सफाई के लिए गई थी, मगर वहां मुझे चक्कर आ गए। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। अब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी। फवाद ने मुझे बिस्तर पर भी नहीं लिटाया। मैंने अपनी सास से पूछा कि क्या हुआ है फुप्पो, अब मैंने क्या कर दिया जो आप मुझ पर ऐसे चिल्ला रही हैं? मैं तो काम कर रही थी कि एकदम से न जाने कैसे चक्कर आ गए। मेरी सास ने मेरे सवाल के बदले मेरे शोहर को देखा और खोलते हुए कहा कि देख ले फवाद, ये अब इस हद तक गिर चुकी है कि हमारे मुंह पर झूठ बोल रही है। अरे हम तेरी असलियत जान चुके हैं कि तुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। एक वक्त में तो तू नेक बीबी बन जाती है और दूसरे पल में एक पागल की तरह बर्ताव करती है। मैं नासमझी से उनकी बात सुनने लगी कि आखिर मेरे से ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई थी। मैंने फिर से पूछा कि खुदारा, आप मुझे बता क्यों नहीं देती कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है? आप क्यों मुझे ऐसे कह रही हैं? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि फवाद ने मेरे बाल अपनी मुट्ठी में भरे और कहने लगा, घटिया लड़की, तो मेरी माँ की जान लेने की कोशिश कर रही थी। वो तो अम्मा ने वक्त पर चिल्लाते हुए मुझे आवाज़ दी और शुक्र था कि मैं घर पर ही मौजूद था, वरना आज तो तुम मेरी माँ को जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। मैं फटी आंखों से ये सब सुनती गई। मैंने जल्दी से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक किसी चींटी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, फिर भला इनको क्यों मारना चाहूंगी? मेरी पुप्पो कहने लगी, अरे तू क्या समझती है कि मुझे मारकर तू इस घर की रानी बन जाएगी? ये तो तेरी भूल है। मैं कभी तुझे इस घटिया मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब जा, दफा हो जा हमारी नजरों के सामने से। उस दिन के बाद से फवाद मुझे कमरे से बाहर निकाल चुके थे। मुझे एक छोटे से कमरे में रहने को बोल दिया गया। मेरी हैसियत अब एक काम वाली जैसी हो गई। सुबह सवेरे पुप्पो मुझे उठाकर कहती कि हमारे लिए नाश्ता बनाओ और फिर घर के काम काज में लग जाओ। मैं उनकी बात चुपचाप मान जाती, क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दे रखी थी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे इस घर से निकाल देंगी। उनका बस चलता तो उसी दिन मुझे धक्के देकर घर से बेघर कर देती। मैंने उनके पैर पकड़कर वास्ते दिए थे, तब जाकर उन्होंने मुझे अपने घर में रखकर एहसान किया। मेरा शौहर अब रातों को देर से घर आता, उसने मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया। वो तो ऐसे हो गया था जैसे मुझे जानता ही ना हो। मुझे उसका ऐसा बेरुखी वाला रवैया बहुत तकलीफ देता। मैं अपने शौक से तो ऐसी नहीं थी, फिर कोई क्यों मुझे नहीं समझता था। अब मेरी बस हो चुकी थी। अम्मा मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछती थी कि मामा तू खुश तो है ना? वहाँ पर तेरी बीमारी का किसी को पता तो नहीं चला? मैं अम्मा को भिनक भी नहीं लगने देती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो इतनी दूर रहकर मेरी ही परेशानी में खुलती रहे।
मगर एक रोज़ तो मेरे ऊपर जैसे क़यामत टूट पड़ी जब शाम के वक्त फवाद घर आया और उसके साथ एक और लड़की थी। मैंने पूछा कि ये कौन है फवाद? तो वो उसका हाथ पकड़ कर कहने लगे कि ये मेरी बीवी है, मैंने दूसरी शादी कर ली है। मेरी पप्पो को जब पता चला तो उन्होंने ज़्यादा एतराज़ नहीं किया क्योंकि उनका बेटा बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इतने अरसे तक मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी। अब मेरे सर पर जब शोहर ने सोतन लाकर बिठा दी तो मैंने चिल्लाते हुए पूछा कि आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे होते हुए आपने दूसरी शादी कर ली? मैं यहाँ इतनी दूर आपके साथ इसलिए आई हूँ कि एक दिन आप एक दूसरी औरत को मेरे सर पर लाकर बिठा दें। मेरे शोहर ने एकदम से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और एक ही झटके में मुझे तलाक दे डाली। वो कहने लगा, अब से मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। तूने मुझे आज तक कौन सी खुशी दी है जो मैं अब तक तेरे नखरे उठाता फिरूं और तुझे सर पर बिठाऊं? उसके बाद दोनों माँ बेटे ने मुझे पाकिस्तान भिजवा दिया। मैं तो जैसे साकत हो गई थी। एक ही पल में मेरी जिंदगी वीरान हो गई। मेरी अम्मा ने जब मुझे देखा तो ये खबर उन पर क़यामत बनकर गिरी। किसी भी औरत के माथे पर जब तलाक का धब्बा लग जाता है तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। हर कोई ही उसको गलत कहता है कि ज़रूर इस लड़की में ही कोई खोट होगा। फवाद से तो शादी के लिए पूरे ख़ानदान की लड़कियां तैयार थी, मगर जब उसका रिश्ता मेरे साथ हुआ तो हर कोई मेरी किस्मत पर रश करने लगता। सब मुझे कहते कि तुझे तो शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए, जो बैठे बिठा इतना अच्छा लड़का मिल गया। अब जब मेरी तलाक की खबर हर तरफ फैली तो हर कोई मुझे ही बातें सुना रहा था। किसी को मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी। मैं अपनी अम्मा को हर वक्त रोता देखती। मैं उनको कितनी बार कह चुकी थी कि अम्मा, आपको खुदा का वास्ता है मेरी वजह से अपनी सेहत ख़राब ना करें, मगर वो हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगती। तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि मेरी सारी सच्चाई मैं जानती हूँ, आप खुद को इल्ज़ाम मत दें, ये सब तुम्हारी तकदीर में होना लिखा था। अभी मैंने अम्मा को ये कहा ही था कि मेरे बड़े भाई ने सब कुछ सुन लिया। उसके बाद से तो वो भी मुझसे बदजन हो गया, क्योंकि पहले ही ख़ानदान भर में मेरी तलाक की वजह से उनको बहुत बातें झेलनी पड़ी थी। अब उसने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि मनूस लड़की, तुम्हारी वजह से हम बदनाम हुए। पहले तो हम तुम्हारी वजह से यतीम हुए, फिर माँ के होते हुए भी हम उनके प्यार से महरूम हो गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुंह उठाकर वापस आ गई हो। अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए। मैं बहुत उदास रहने लगी। मैंने हर किसी से बात करना छोड़ दिया, खुद को बस घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया ताकि ये तकलीफ़दा यादें मेरा पीछा छोड़ दें। मगर वो तो जैसे मेरे साथ चिमट गई थी। मैं चाह कर भी माजी से पीछा नहीं छुड़वा सकती थी, क्योंकि ये सब मेरी ज़िंदगी का एक भयानक ख्वाब था। और फिर इसी तरह एक दिन मैं ऊपर तार पर कपड़े लगाने गई। कुछ देर वहीं बैठकर दर्दनाक माजी के बारे में सोच रही थी कि मेरी नज़र एक चील पर पड़ी जो मुझे ही देख रही थी। मैं हैरान हो गई क्योंकि उसकी आंखें मुझे ही घूर रही थी। जब मेरी मंगनी थी उस रात भी मैंने इसी वक्त एक चील को देखा था। न जाने वो क्यों बगैर पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। मुझे कुछ खौफ आया, इसलिए जल्दी से सूखे कपड़े उतारती नीचे की तरफ भागी, क्योंकि मौसम भी अचानक से ख़राब होने लगा था। मगर सीढ़ियों पर ही मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छाने लगा, जिसकी वजह से मैं मुंह के बल गिरने लगी, लेकिन किसी अनदेखी ताकत ने मुझे बचा लिया था। मैं जागी तो खुद को कमरे में देखकर मज़ीद डर गई। आखिर ये सब क्या हो रहा था? फिर उस वाक़े के 2 दिन बाद ही मेरे लिए एक रिश्ता आया। मैं हैरान थी कि भला एक तलाक याफ्ता लड़की से कोई क्यों शादी करेगा। मैंने अम्मा से कहा कि इस शख्स को मेरी पुरस्रार बीमारी के बारे में बता दें तो वो खुद ही इनकार कर देगा। मगर मेरे पैरों तले से तो ज़मीन सिरक गई जब उसने कहा कि मैं मामा के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं इनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि इनको बहुत ही खुश रखूँगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये शख्स कैसे मुझे जानता है। मेरी बीमारी के बारे में तो मेरे सगे भाइयों को भी इल्म नहीं, फिर ये कैसे जानता है। मैं कभी दोबारा शादी नहीं करती, मगर अम्मा ने मुझे अपनी कसम दे दी थी कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरे भाई तो पहले ही मुझसे नफ़रत करते, फिर मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। इसलिए मैं राज़ी हो गई। शादी के बाद मैंने उस शख्स से पूछा कि आप कौन हैं
और मुझे कैसे जानते? मुझे उसकी आंखें देखकर ऐसे लगा जैसे मैं पहले भी ये सब कुछ देख चुकी हूँ। उसने कहा था कि मैं वही चील हूँ जिसको आप अपने घर में देख चुकी हैं। मैं दरअसल एक जिनजाद हूँ जो किसी अमल को पूरा करने के लिए आपके घर के पास ही आया था, मगर जब देखा तो आपसे इश्क कर बैठा। मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। आपको कोई बीमारी नहीं है, बस ये एक काला साया है जो उस जादूगर के काले अमल की वजह से आपके साथ चिमट गया। मैं अपनी जिन्नाती ताकतों से उस साए को आज रात ही ख़त्म कर दूंगा, फिर हम दोनों एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं पहले तो बहुत खौफजदा हुई कि मेरी शादी एक जिनजात से हुई, मगर फिर जब उसने मुझे सब कुछ बताया तो मैं पुरसुकून हो गई कि चलो शुक्र है, अब मैं भी एक आम इंसान की तरह जी सकूंगी। मेरे जिनजात शोहर ने उसी रात उस काले साए को जलाकर भस्म कर डाला, उस काले जादू के असर को ख़त्म कर डाला। मैं अपने रब की बेहद शुक्रगुजार थी जिसने आखिरकार मेरी आजमाइश को ख़त्म कर डाला। अब मैं भी पुरसुकून होकर एक खुशहाल अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रही थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।